students, welcome to Tour Academy. I hope you are all well and you must have seen my previous videos also और आपने उनको like भी किया होगा. Please subscribe them. आज मैं आपका एक बहुत ही important topic ले रही हूँ from the same chapter, that is matter in our surrounding. This is the first chapter of chemistry class 9 और उसका एक बहुत important topic है kinetic theory of matter and of course diffusion also. और बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है आपके इस NCERT के. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. तो आपने कहाँ से स्टार्ट करना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर को एक्सप्लेन करने के लिए? आपने फर्स्ट पॉइंट इसका बताना है कि ऑल द मैटर वेदर दे आर मेड अप ऑफ वेदर दे आर सॉलिड लिक्विड और गैसेस, दे आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स एंड these particles are actually atoms and molecules. Sometimes atoms cannot stand independently in nature, so they combine with another atom and form a molecule. So either you can say कि all the matter, whether they are solid, liquid or gases, they are made up of tiny particles, or you can say tiny particles की जगह you can use atom and molecule word भी आप use कर सकते हो. So this is the first point. All the matter they are made up of tiny particles, right? Number 2 है कि these particles they are बिल्कुल जुड़े हुए नहीं हैं ये. Whether they are solid, liquid, gases, they have spaces in between them. इनके particles के बीच में कुछ spaces होते हैं, कुछ खाली जगह होती है. वो दूसरी बात है कि solids में the spaces about मतलब बिल्कुल negligible होती है. They are quite close to each other. On the other hand, liquids में थोड़ी space ज़्यादा होती है and जो आपके gaseous है उसकी तो बात ही कुछ और है. उनमें तो इतनी ज़्यादा स्पेसेस होती है, इतनी ज़्यादा स्पेसेस होती है पूरे कमरे में, उनके लिए तो फुल फ्रीडम है, इतनी ज़्यादा स्पेसेस होती है. तो these spaces are known as intermolecular spaces. Intermolecular spaces को बोलते हैं. You should use more and more technical word while explaining the answer. Number 3 है कि इन particles में there is a force of attraction. This force of attraction is known as intermolecular force of attraction. Force of attraction. Intermolecular force of attraction. Now the solid particles, because they are quite close to each other, इसीलिए है क्योंकि they have the maximum intermolecular force of attraction. इतना ज़्यादा force of attraction है कि they come close to each other so much कि the substance becomes solid. On the other hand, जो liquid matter है like water है और भी कितने liquids हैं, उनमें क्योंकि spaces ज़्यादा क्यों हैं? Because their force of attraction, their particles के बीच में जो force of attraction है, it is less as compared to the solid. That is why they are. So all these points are interrelated. क्योंकि spaces उनमें ज़्यादा है, इसका मतलब उनमें attraction कम है, और vice versa you can say, like in liquids the force of attraction is less, so थोड़े इतने ज़्यादा attract नहीं होते हैं, तो space becomes more. In the case of gaseous particles, उनमें तो force of attraction negligible होता है, ना के बराबर होता है. That is why उनमें space सबसे ज़्यादा होता है. उनमें attraction तो नाम के लिए भी होता है, पता नहीं, negligible force of attraction होता है. So that is why they are quite away from each other and the substance become gases. जितने भी जो आपके मैटर के 3 states हैं, mainly प्लाज्मा स्टेट, और आजकल तो 2 states मैं आपको एंड में बताऊंगी और भी हैं हमारे पास. तो जितने जो मेन जो 3 स्टेट्स हैं मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इट डिपेंड्स, दे डिपेंड अपॉन दीज पॉइंट्स. ये काइनेटिक थ्योरी के जो मैं अभी पॉइंट्स बता रही हूँ, इन्हीं के बेस पे यू कैन क्लासीफाई ऑन द बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. जिनमें पार्टिकल्स में मॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है वो सॉलिड हो गया, जिसमें कम है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो लिक्विड बन गया, जिसमें बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो गैस हो गया, जिसमें स्पेस बिल्कुल कम है नेग्लिजिबल है वो सॉलिड हो गया, जिसमें थोड़ा स्पेस है ज़्यादा वो लिक्विड हो गया, जिसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है वो गैस बन गया. सो दीज आर ऑल इंटर रिलेटेड, और इन्हीं पॉइंट्स के बेस पे यू कैन क्लासीफाई मैटर इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. फोर्थ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि
ऑल दीज पार्टिकल्स, जो आपके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, टाइनी पार्टिकल्स, दे आर नॉट स्टेशनरी, वो स्टेशनरी नहीं है, दे आर कॉन्स्टेंटली दे आर मूविंग, रैंडमली दे आर मूविंग, मूवमेंट है उनमें, कॉन्स्टेंटली दे आर इन मोशन, कॉन्स्टेंटली दे आर इन मोशन, मूविंग है, दे आर नॉट स्टेशनरी। और कैसा मूव कर रहे हैं? रैंडमली, जिग जैग मैनर में, इधर उधर जहां भी, जैसे कोई मॉस्किटो का मूवमेंट होता है, लाइक दैट दे आर मूविंग रैंडमली हियर एंड देयर and constantly they are. Robert Brown, first of all, he saw the movement of these particles, इसीलिए इस मूवमेंट को हम ब्राउनियन मूवमेंट भी कहते हैं, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया, दिस इज ब्राउनियन मूवमेंट। और ये मूवमेंट क्यों होता है? बिकॉज दे हैव काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनीथिंग विच इज मूविंग हैज काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी अब लिक्विड में, सॉलिड में सबसे कम होती है, बिकॉज उनको मूव करने का स्पेस ही नहीं है उनमें, सो काइनेटिक एनर्जी उनकी लीस्ट है, सबसे कम है, सो बहुत कम मूव करते हैं, उनका जो मूवमेंट है वो बहुत ही कम होता है। और जो लिक्विड है उनमें स्पेसेस ज़्यादा है, थोड़ा फ्रीली मूव कर सकते हैं लिक्विड के पार्टिकल्स, तो काइनेट, क्योंकि उनमें काइनेटिक एनर्जी फिर ज़्यादा होती है, दे कैन मूव फ्रीली। और गैसेस में तो इतना ज़्यादा स्पेसेस है, वो है ही इसीलिए इतना स्पेसेस क्योंकि उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल है और उनमें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर। और एक पॉइंट मैं पांचवा और आपको बता देती हूँ, एंड दैट इज कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे इट विल ऑल्सो इंक्रीज। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे उतने ही उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। दे विल स्टार्ट मूविंग with very fast speed, rapidly they will start moving. So this is the relationship between kinetic energy of particles and temperature. तो temperature के directly proportional, kinetic energy of the particles is directly proportional to temperature, right? और this is the reason कि आप जैसे जैसे अगर एक solid को आप heat करते हो तो उनके particles की kinetic energy increase हो जाती है। They will start going away from each other while moving, and space बढ़ जाता है, and automatically that solid will get converted into liquid form. और liquid को further if you heat it, और ज़्यादा हीट करोगे तो और पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो एक दूसरे से दे विल कोलाइड विद ईच अदर, गो अवे फ्रॉम ईच अदर, और इतना दूर चले जाएंगे दैट द सब्सटेंस विल बिकम गैस। So all the points they are interrelated. So this is all about kinetic theory of a matter, right? इसके बाद आ जाता है, इसी से थोड़ा बहुत रिलेटेड है डिफ्यूजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में है, एवरीडे लाइफ में भी यू विल सी अ नंबर ऑफ फिनोमिना व्हिच आर बेस्ड ऑन डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब है the spreading of these particles, या spreading of or mixing of these tiny particles of one substance to another substance. एक substance के particles move करते करते दूसरे substance में जाएंगे, intermixing of these particles of substances. एक substance के particles दूसरे में चले जाएंगे, दूसरे के पहले में mix हो जाएंगे. So intermixing or spreading of particles is known as diffusion. And this diffusion normally it is, एक और बात हम इसमें आपको बताते हैं, that is from higher concentration to lower concentration they diffuse होते हैं। आगे चल के मैं एक पॉइंट और बताऊंगी ऑस्मोसिस का, एंड आई विल एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। बहुत सारे क्वेश्चन उसके बेस पे भी है, लेकिन आज मैं इस टॉपिक में सिर्फ आपको डिफ्यूजन के बारे में बताएंगे। तो डिफ्यूजन क्या है? एक प्रोसेस है, एक फिनोमिना है जिसमें पार्टिकल्स ऑफ मैटर दे इंटरमिक्सिंग या स्प्रेड हो जाते हैं, पूरे कमरे में फैल जाते हैं, एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं। आपने देखा है कहीं अगर आग लगती है, स्मोक उठती है, वहाँ से स्लोली एंड स्टडीली द पार्टिकल्स ऑफ स्मोक दे विल स्प्रेड थ्रू आउट द एरिया। एयर के पार्टिकल्स के बीच में वो मिक्स हो जाएंगे, एयर के पार्टिकल्स के बीच के साथ वो मिक्स हो जाएंगे, इंटरमिक्सिंग उसकी हो जाएगी। सो दिस इज अ केस ऑफ डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इंटरमिक्सिंग और यू कैन से स्प्रेडिंग भी कह सकते हो, स्प्रेडिंग ऑफ
particles of matter from one substance to another। सब में होता है, पर ये जो डिफ्यूजन है ये सॉलिड में सबसे कम देखने को मिलता है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा होता है, एंड गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा इंटरमिक्सिंग होती है, बिकॉज उनके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी इज सो मच कि वो एकदम से स्प्रेड हो जाते हैं। सो नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन, इस फिनोमेना के कुछ एग्जांपल विच टेक प्लेस जो हमारे एवरीडे लाइफ में टेक प्लेस। और पहला एग्जांपल है कि डिफ्यूजन का फर्स्ट एग्जांपल है स्मेल ऑफ फूड। आपके घर में जब हलवा बनता है या कुछ खाना बनता है तो आपने देखा कि उसकी जो खुशबू है वो पूरे घर में फैल जाती है। कैसे फैल जाती है, यहाँ पे एक चीज़ और भी बता दूँ कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ डिफ्यूजन भी इंक्रीज होगा। तो जब आपके मम्मी आपके लिए हलवा बनाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ बनाते हैं, इतनी खुशबू होता है, मसाला जब मम्मी भूनती है किचन में, आप देखते हो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। वो क्यों फैल जाती है? क्योंकि जब आप बनाते हैं हलवा तो उसके वेपर्स, गैसियस फॉर्म में जो वेपर्स उसके उठते हैं, दे स्टार्ट स्प्रेडिंग, दे स्टार्ट मिक्सिंग एयर इन द होल हाउस। पूरे घर में वो एयर के साथ मिक्स होने लग जाते हैं एंड पूरे घर में उसकी खुशबू आ जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे डिफ्यूजन भी बढ़ता है, उतनी जल्दी पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है, बिकॉज डिफ्यूजन ऑल्सो इंक्रीजेज बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, राइट। इसके अलावा आपने देखा है अगर फ्रिज में से आप ठंडा फूड निकालोगे और उसकी स्मेल नहीं फैलती है। फ्रिज में से इफ़ यू टेक आउट सब्जी ले लो, कोई वेजिटेबल ले लो, यू टेक आउट फ्रॉम द फ्रिज, रेफ्रिजरेटर से आप बाहर निकालते हो, उसकी खुशबू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट्स टेम्परेचर इज़ वेरी लो, उसका टेम्परेचर बहुत लो है। मैं क्यों बता रही हूँ ये, क्योंकि इसके बेस पे आपके कुछ क्वेश्चन हैं NCERT के। गर्म फूड की खुशबू पूरे घर में एकदम फैल जाती है। तीसरे चौथे घर में भी अगर कुछ ऐसी चीज़ बन रही है, पकोड़े बन रहे हैं या कुछ और बन रहा है, तो उसकी खुशबू एकदम हमारे घर तक पहुँचती है, बिकॉज वो टेम्परेचर उसका ज़्यादा होता है, दे आर हॉट वेपर्स दे आर प्रोड्यूसिंग, और हॉट वेपर्स काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, दे विल स्प्रेड सो क्विकली थ्रू आउट द एरिया। ऑल दीज थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। हीट करोगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पेसेस बढ़ेंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, दूर दूर तक वो डिफ्यूज हो जाएंगे। और एग्जाम्पल आप ले सकते हो परफ्यूम का, यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ परफ्यूम। परफ्यूम का अगर आपकी बॉटल एक कमरे में एक कॉर्नर में पड़ी है, परफ्यूम बॉटल, इफ यू ओपन इट, तो परफ्यूम जो है इट इज़ हाईली वॉलेटाइल सब्सटेंस, एकदम से वो वेपर्स बनाने लग जाता है, एंड वो वेपर्स in the gaseous form they will start spreading throughout the area and you can smell it। और इसी तरह से आप और एग्जांपल इसके ले सकते हो। इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती अगर एक कॉर्नर में जलती है, उसके वेपर्स उठते हैं, हॉट वेपर्स है, गर्म है, एंड दीज वेपर्स दे विल स्प्रेड क्विकली इन द होल एरिया एंड यू कैन स्मेल इट, उसकी फ्रेग्रेंस आप स्मेल कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ डिफ्यूजन। इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो भी आपको टाइम पे मैं जब क्वेश्चन आंसर लेंगे तो आपको बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एंड आई होप यू have understood all these topics, kinetic theory of matter and diffusion also with example मैंने आपको समझाया। और नेक्स्ट टॉपिक इससे जो भी आपके चैप्टर का इसका नेक्स्ट टॉपिक है, आई विल टेक दैट। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं आपको बार बार कहती हूँ वीडियो मेरे वॉच करो, सब्सक्राइब करो, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट टॉपिक या कोई भी टॉपिक हो, यू कैन आस्क विदाउट एनी हेसिटेशन इन माई कमेंट सेक्शन। कोई भी टॉपिक, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो, इन केस यू आर फाइंडिंग सम डिफिकल्टी, आपको क्लासरूम में स्कूल में समझ में नहीं आया वो टॉपिक, यू कैन आस्क, आउट ऑफ द वे जाके आपको मैं वो उसका आंसर बता दूँगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।